everyone, welcome back to my channel Study with Neha Mawa. So today I am back with another video, and in this today's video I am going to tell you about what is acceptance and what is offer and how we can revoke it. So let's get started. So before that, I welcome you all who are watching my video, and before that I would like you to subscribe to my channel, like my video and share with your friends. So in today's video, we are going to start the acceptance under Indian Contract Act 1872. So when what firstly we want to know that we have to understand that what is acceptance here. Acceptance means to give consent on something. So, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, becomes a promise. Acceptance means when the person signifies his willingness to accept the offer that was offered by somebody else, it becomes acceptance. And when it is offer plus acceptance, it becomes a promise. An acceptance is considered valid when it must be given by the person to whom the proposal is made. Generally, acceptance must be given to that person who made offer earlier, right? So it must be given in the manner prescribed by the proposer. Means the acceptance must be prescribed, must be communicated properly to the person who made the offer. It must be given within the time prescribed by the proposer or within a reasonable time. And it must be absolute and unqualified, means it does not possess any kind of condition there. Okay, so first we have acceptance must be communicated. So firstly what we have to do is we have to see that the acceptance that is given by a particular person, it should be communicated to the person who made the offer earlier. So acceptance must be communicated is a fundamental principle of a contract law, which means that the acceptance of a proposal or offer by the offeree must be communicated to proposer or offerer for a contract to a legally binding. मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ऑफरर ने आपको ऑफर दिया और आप तक कम्युनिकेट करवाया. नाउ आपके पास ये ऑप्शन है, आपने उसको एक्सेप्ट किया. जो ऑफर आपको मिला था किसी दूसरे पर्सन से, आपने उसको एक्सेप्ट किया और आपने उसकी एक्सेप्टेंस दी कि हाँ आई विल एक्सेप्ट इट. बट वो एक्सेप्टेंस देना जायज़ नहीं है. मतलब वो आपको जो एक्सेप्टेंस है वो आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी. आपको श्योर होना पड़ेगा कि जो आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो क्या वो ऑफरर तक पहुंची कि नहीं पहुंची. Okay, so in other word, when one party makes an offer to another party, the other party must communicate their acceptance to the offer to the first party for the contract to be valid, जो मैंने अभी आपको बताया. The communication of the acceptance can be made through any reasonable means. अब चाहे वो आप लिखित में दो, बोल के दो, या फिर टेलीफोनिक हो सकता है, मेल हो सकती है, किसी भी तरीके से आपको सिर्फ कम्युनिकेट करना है उस एक्सेप्टेंस को. दैट इज ओनली नीडेड. थर्ड वी हैव द फेलियर टू कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर मींस नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड एंड द ऑफरर इज नॉट बाइंड द ऑफर. ओके, हमने यहाँ क्या बात करी, ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस दिया, तो वो क्या बना, प्रॉमिस बना. यहाँ अगर आपने ऑफर तो दे दी बट एक्सेप्टेंस नहीं दी तो वो प्रॉमिस नहीं बनेगा और ना वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना वो अग्रीमेंट बनेगा. क्लियर. देन वी हैव अ केस Feldhaus versus Bindley. Feldhaus versus Bindley is a landmark case in English contract law that deals with the principles of acceptance in the contract information. अब इसमें क्या था, सिंपल सा डिस्प्यूट जो था वो नेफ्यू और उसके अंकल के बीच में था रिगार्डिंग द सेल ऑफ द हॉर्स. अब इसमें क्या प्रिंसिपल था जो अप्लाई किया, द केस एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल दैट acceptance must be communicated by the offerer for a contract to be legally binding. The case also highlighted that silence or inaction
on the part of the offerer cannot be considered acceptance. Therefore, for a contract to be formed, both the parties must communicate their acceptance to each other. जब तक A ने ऑफर दिया B को, जब तक A अपने ऑफर को कम्युनिकेट नहीं करेगा B तक, तो B तब तक एक्सेप्टेंस भी नहीं देगा. जब तक B एक्सेप्टेंस नहीं देगा तब तक आपका क्या होगा, प्रॉमिस फॉर्म नहीं होगा. प्रॉमिस फॉर्म नहीं होगा, अग्रीमेंट नहीं बनेगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट. सो देयर विल बी नो लीगल बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. ओके, देन we have acceptance by the conduct. Acceptance by conduct is a type of acceptance in contract law where a contract is formed through the action or conduct of the parties involved. आपको अगर एक्सेप्टेंस देनी है तो आपको एक कंडक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस और एक्सेप्टेंस बाय बिहेवियर. यहाँ दो चीजें बात करी गई है. देखो हमेशा क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑलवेज हम बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस रिटर्न होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑरली होनी चाहिए, मेल्ड फॉर्म में होनी चाहिए, व्हाट्सोएवर, ये तो है ही है. प्लस ऑन दी अदर हैंड जो एक्सेप्टेंस होती है वो हमारी बाय परफॉर्मेंस से भी हो सकती है या फिर वो बिहेवियर से भी हो सकती है. क्लियर? In this type of acceptance, the offerer does not receive any explicit communication of acceptance from the offeree, but rather infers acceptance from the conduct of the offeree. Right? Acceptance by conduct is generally recognized as a valid. Means आपने जो काम के लिए एक्सेप्टेंस दी है, जब आप वो कर रहे हो तो वो काम का परफॉर्मेंस भी हो रहा है, वो कंडक्ट भी हो रहा है, साथ में वो एक्सेप्टेंस भी माना जा रहा है. तो वो एक वैलिड फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस होती है व्हेन द कंडक्ट ऑफ द ऑफरी इज कंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर. In other words, the conduct of the offeree must be such that it clearly indicates the acceptance of the offer. Right? Now, वेरी इंपॉर्टेंट केस, कार्लर वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस था, जिसमें हमने क्या बोला था कि जो वो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो कंडक्ट ऑफ प्लांटिफ था, कंडक्ट ऑफ प्लांटिफ क्या था कि उसने वो स्मोक बॉल ले ली थी या जो भी केस था, उसने एक्सेप्ट किया उस चीज को, तो उसने वो चीज आगे फर्दर करी. तो कहीं ना कहीं उनके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप बना और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ दोनों पार्टीज में. जनरली एक्सेप्टेंस ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कोई परफॉर्मेंस करना. फाइन. नाउ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट. अब आप अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट के थ्रू भी दे सकते हो. Acceptance by post is a mode of communication commonly used for accepting an offer in the contract law. It is based on the principle that communication is complete when the acceptance is put in the course of transmission of the offerer. आपने एक्सेप्ट किया ऑफर को, अब आप उस ऑफर को कहाँ करोगे, डिलीवर करोगे ना पोस्ट के थ्रू. किसको? जिस पार्टी, जो ऑफरर था, जो अर्लियर पार्टी थी, तो ही जाके वो एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट होगा. राइट? फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेश केस हम ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है, तो आपकी सिस्टर ने जो है आपको राखी भेजी है बाय पोस्ट से. अब आप उनको क्या करोगे, आपके पास राखी आ गई, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. अब आप अपने एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट कैसे दिखाओगे? अब आप क्या करोगे, जो वो राखी थी, ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो राखी आपके पास आई थी, आपने रक्षाबंधन बना लिया, सब कुछ के लिए, वहां पे एक लेटर लिखोगे अपने सिस्टर को कि आई रिसीव्ड योर दिस दिस दिस, सब पे क्या पोस्ट कर दोगे. मीन्स आपकी एक्सेप्टेंस थी, आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने उसको पोस्ट भेज दिया दैट आई रिसीव्ड योर ऑर्डर. ठीक है. Now, according to this principle, if the offeree accepts the offer by post, communication of acceptance is considered complete as soon as the acceptance is posted. This means that acceptance becomes effective even if it lost in the post. देखो, हमने बोला कि एक्सेप्टेंस कब होगी, जब आप पोस्ट के थ्रू भेज दोगे. भेजना ही यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट है. आपने एक्सेप्ट किया किसी चीज को और आपने पोस्ट के थ्रू एक्सेप्टेंस अपनी भेज दी. ठीक है. अब बीच में क्या हुआ इन ट्रांजिट में, या तो वो गुम गया, या वो डिले हो गया, या वो डैमेज हो गया. इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर बिजनेस. आपने भेज दिया, दैट्स इट. वो क्या माना जाएगा, वो ये माना जाएगा कि आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी थी और वो पोस्ट के थ्रू पहुंच गई थी. बट प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि या तो वो इन ट्रांजिट लॉस्ट हो गई, या वो डिले हो गई, या वो डैमेज हो गई. इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं था. आपने गुड फेथ में अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी थी, प्रॉपरली एड्रेस स्टैम्प्ड एंड पोस्टेड था. बट बीच में क्या हुआ, मे बी रेन बहुत ज्यादा हो गया, फ्लड आ गया, सब खत्म हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सब खत्म हो गया, या
बीच में कुछ भी दंगे फसाद हो गए तो हो गया. सो इन केसेस में क्या हो जाता है, अगर वो रीच नहीं भी किया है बट स्टिल आपने एक्सेप्टेंस अपनी दे दी है पोस्ट से, वो वैलिड मानी जाएगी. देन वी हैव अ केस एडम्स वर्सेस लिंडसेल. In this case, the defendant Litzel wrote to the plaintiff Adam offering to sell a quantity of wool. Offer was made on September 2nd, but due to an error in addressing, it reached to the plaintiff until September 5th. ठीक है, second को करी थी but वो 5th को पहुंची. On the same day, plaintiff sent a letter accepting the offer by post. However, due to postal delays, जो 5th को या 2nd को पहुंचना था वो September 9 को पहुंचा. Defendant, believing that plaintiff had not accepted the offer, sold the wool to someone else. When the plaintiff found out, he sued the defendant for breach of contract. Defendant argued that the contract was not formed as the acceptance was not received by me. The court held that the contract was formed when the acceptance was posted, जो मैंने अभी आपको बताया. पहुंचना है पोस्ट का, ना पहुंचना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इंटेंशन जो उसका था कि उसने अपनी एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट कर दी है वो ही इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट व्हेन इट वाज रिसीव्ड बाय द डिफेंड. ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट आपका तब फॉर्म होगा जब एक्सेप्टेंस आपकी बाय पोस्ट चली गई है. ठीक है, नॉट कि जब उसने ऑफर ने रिसीव किया. This was based on the principle that once an offer is made, it can be accepted by any reasonable means of communication, including the post. Irrelevant कि वो कब पहुंचेगा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, doesn't matter. Then we have the place of acceptance here. What is the place of acceptance? The place of acceptance is the location of an acceptance of an offer is communicated by the offeree to the offerer. Means offeree की location आपकी place of acceptance होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है. अब यहाँ दो चीजें, एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी. ऑफरर वो पर्सन होता है जो ऑफर करता है, ऑफरी वो पर्सन होता है जो एक्सेप्टेंस देता है. ठीक है, द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ एज इट हेल्प टू डिटरमाइन द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द लॉ दैट अप्लाइज टू द कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ इन्होंने बताया एक्सेप्टेंस बाय द टेलीफोन और टेलिक्स. इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, जनरल रूल इज दैट द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, नॉट व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर, जो मैंने बताया. ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टल रूल ही ये एक है. हाउएवर, इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन और टेलिक्स, the communication of acceptance against the proposer is not complete until the offerer receives the acceptance message, and the place of contract in case of acceptance by telephone or telex is the location of the proposer. Then acceptance must be absolute and unqualified. मतलब कोई condition impose नहीं होनी चाहिए while giving the acceptance. It means that the offeree must accept all the terms of the offer without any modification, कंडीशंस और क्वालिफिकेशंस. ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए और कोई उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए. इफ द ऑफरी tries to change the terms of offer or add new conditions, it will be treated as the counter offer and will not result in the binding contract. ये counter offer हो जाएगा और वहीं खत्म हो जाएगा. ठीक है, the rationale behind this principle is that offerer has made an offer on specific terms, and then any attempt by the offeree to modify the terms of the offer would result in a new offer. ठीक है, the offerer then has the option to accept. अब offerer के पास क्या है, जो नया offer है, या तो वो उसको accept करे या वो उसको reject करे. Offeree's acceptance must be a mirror image of the offer. Means जो offerer ने offer दिया है वो as it is accept होना चाहिए. अगर ऑफरी ने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी, सो दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर. ठीक है, तो ही इट डिपेंड्स अपॉन द फुल डिस्क्रिशन, इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑफरर कि वो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है या रिजेक्ट करना चाहता है. देन वी हैव एक्सेप्टेंस मस्ट बी मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रपोजर या ऑफरर. जिसने ऑफर दिया है, अगर उसने साथ में लिखा भी है कि आप इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन से ही मुझे अपना एक्सेप्टेंस भेजे, तो आपको उसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से अपनी एक्सेप्टेंस भेजनी पड़ेगी.
So under the Indian Contract Act, if the proposer prescribes a specific manner in which the acceptance must be communicated, then the acceptance must be made in that manner. अपने हिसाब से अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं कर सकते. The proposer may be prescribed the manner of acceptance either expressly or impliedly. Example यहाँ दिया हुआ है. If the proposer specifies in the offer that acceptance must be sent by email or fax, then the offeree must communicate the acceptance in that manner. Similarly, if the proposer is in the habit of receiving acceptance in a particular manner, तो आपको उस manner में करना ही पड़ेगा. Then we have revocation of offer and acceptance under section 5 of Indian Contract Act. Okay? अब यहाँ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात करी गई है कि आप जब प्रपोजल देते हो या जब आप ऑफर देते हो तो आप कब कब रिवोक कर सकते हो. अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले आप ऑफर को रिवोक कर सकते हो. द रेवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of person to whom the proposal was made. It can be done by proposer himself or through his authorized agent. Revocation का मतलब होता है ऑफर को खत्म कर देना, कैंसिल कर देना. जो ऑफर आपने दिया था, जब उस ऑफर को आप कैंसिल कर देते हो, खत्म कर देते हो, उसको हम रेवोकेशन कहते हैं. अब जो ये रेवोकेशन है, ये ऑफर का भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है. डिमांडेड ये है कि कम्युनिकेशन से पहले, मतलब एक्सेप्टेंस से पहले हो जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑफर दिया, ऑफर पहुंचने से पहले पहले ऑफरी के पास फॉर एक्सेप्टेंस, ऑफर पहुंचने से पहले पहले अगर आपने रिवोक कर लिया तो आपका ऑफर खत्म हो जाएगा, कम्स टू एन एंड. बट अगर उसने पढ़ लिया और उसने आपको एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट भेज दी, बट अभी आपके पास रिसीव नहीं हुआ ड्यू टू सम डिलेस, बट एक्सेप्टर ने या जो आपको ऑफरी है उसने एक्सेप्टेंस अपनी भेज दी बाय पोस्ट और अभी आपको रिसीव नहीं हुई और आपने क्या कर दिया, रेवोकेशन कर दिया, वो रेवोकेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट भेज दी है. हाउएवर, रेवोकेशन must be communicated to offeree in a reasonable manner and in a reasonable time before the acceptance is complete. Once the acceptance is complete, proposal cannot be revoked. जो भी मैंने आपको बताया. Then we have revocation of acceptance here. How we can revoke the acceptance? अब हमेशा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑफर ही रिवोक होता रहे, एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो जाती है. An acceptance may be revoked by the acceptor at any time before the communication of acceptance is complete. Revocation must be communicated to the proposer in the same manner जिस तरीके से acceptance दी जाती है. If the acceptance has already been communicated, the revocation will not be effective. ठीक है, for example आपके पास offer आया, it is up to you कि अगर आपको वो accept करना है या फिर reject करना है. अगर आपको accept करना है तो acceptance का post दे दो, रिजेक्ट करना है तो रेवोकेशन का दे दो. ठीक है. नाउ मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर. सेक्शन 6 जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो डील करता है रेवोकेशन ऑफ ऑफर्स और उनके मोड से. फर्स्टली, रेवोकेशन बाय कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑफरर टू ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस. ठीक है. एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर, जो ऑफर देता है, at any time before it is accepted by the offeree. ऑफर जो है वो रिवोक हो सकता है, कब हो सकता है, जब ऑफरी ने अभी अपना एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, उससे पहले पहले. रेवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरर टू द ऑफरी in a proper way within a proper time. If the offerer fails to communicate the revocation, the offer remains valid and can be accepted by the offeree. Right? Now, रेवोकेशन थ्रू कम्युनिकेशन या थ्रू नोटिस भी हो सकता है, लैप्स ऑफ टाइम भी हो सकता है. लैप्स ऑफ टाइम में क्या होता है कि एन ऑफर लैप्स इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन ऑफर, तो वो आपका रिवोक हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ऑफर था, उसने ऑफर दिया,
उस ऑफर में उसने ये चीज लिखा कि मुझे 1 वीक के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस दे देना। 1 वीक के अंदर अंदर उसने अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी, लैप्स ऑफ टाइम हो गया, तो वो आपका ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि उसने एक्सेप्टेंस अपनी पोस्ट के थ्रू दे दी है, मे बी डिले हो गया, मे बी 14 दिन लग गए आने में या 10 दिन लग गए आने में, तो वो रिवोक नहीं हो सकता। क्लियर? Then we have revocation by death or insanity of the offer, right? अब क्या होता है, ऑफर इज ऑटोमेटिकली रिवोक्ड अगर किसी भी ऑफरर की डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसेन हो जाता है, या कोई और एक्सीडेंट या और कुछ हो जाता है, तो उस केस में जो ऑफर होता है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है, एंड ऑफरी कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर देयर। It is important to note that the revocation of an offer must be communicated to the offeree before acceptance. If the offeree accepts the offer before receiving the revocation, तो contract form होता है, offerer कुछ भी नहीं कर सकता। Now, furthermore, an offer cannot be revoked if it has been accepted by the offeree by the parties have entered into a contract. Once a contract is formed, it can only be terminated by the method provided under इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट बहुत ही कम चांसेस होते हैं रेवोकेशन के, क्योंकि आपका तब तक लीगल रिलेशनशिप और कॉन्ट्रैक्ट आपका बन गया होता है। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सेप्टेंस and its revocation, each and everything. I hope you like my video. इस वीडियो के बाद नेक्स्ट के जो स्लाइड्स अब आपकी आएंगी, वो आपकी आएंगी कंसेंट ऑफ द पार्टीज, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो सब आना शुरू हो जाएगा। ये तो जस्ट आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब मेन आपका सेक्शन 10, 11, 12 यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, एंड दो सेक्शंस आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, so thanks for watching. Please subscribe to my channel, like my video and share with your friends. Bye and take care.